हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्यू गेट क्लासेस एंड इनिशिएटिव बाय टेक्यू फैकल्टी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। In our last 8 video till now we have discussed the introduction of a differential equation, the motivation of a differential equation, the order degree, the linearity, non-linearity, formation of a differential equation, types of solution of a differential equation, types of problem of a differential equation. We also covered the part of a solution of a first order and first degree differential equation, in which we have discussed the several methods like variable separable method, homogeneous differential equation method, non-homogeneous differential equation method, exact differential equation, non-exact differential equation, linear and Bernoulli's differential equation. In the last two lectures, we have also covered the part of a higher order differential equation with constant coefficient, in which we have covered the homogeneous linear differential equation with constant coefficient, and where we already learned how to find the complementary function. In our last video, that is our lecture number 8, we have seen the non-homogeneous differential equation with constant coefficient, where the general solution will be in the form of a complementary function and the particular integral. And in that particular integral, we have also covered the three rule where when the function, the right hand side function, if it is in the form of exponential term, when the right hand side the function will be in terms of sine and cosine terms, or when the right hand side function, that is in our rule number 3, we also covered when the function will be in monomial or polynomial. In this lecture, we are going to start with our rule number 4, and in that rule number 4, we assume that our function will be, it's a e to the power of ax into v of x. So that means if the some function, that is f of x, that will represent our non-homogeneous differential equation. So now we are taking its exponential with some another function. अब यहाँ पर जो फंक्शन है रूल नंबर 4 में, वो हमारी फंक्शन ऐसी होगी जो कि हमारे एक्सपोनेंशियल के साथ कोई अदर फंक्शन हो, दैट इज e टू द पावर ऑफ x into v of x, where vx is any function of x. So we know that the particular integral formula in our d operator method, that is yp equal to 1 by f of d, it's a f of x. And in our rule number 4, we assume that our function is our e to the power of x, that is one function is fixed and other function is our v of x. यानी एक फंक्शन है हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की है और दूसरी फंक्शन कोई भी हो सकती है. So in that case, the particular integral, that is the product of exponential with any other function, in that case the particular integral we can find, in that case we have to replace d with d plus a, यानी जो हमारी e to the power of x का जो टर्म है, in that case our operator we will update, and in that case we have to replace d with d plus a, and now this f 1 by f of d plus a will be operated our the function v. यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारी दो फंक्शन दी हुई है और एक फंक्शन फिक्स है, in that case we will update our operator, and now the operator will be our, we have to replace d with d plus a. Now we will find the value of this operator with our function v of x, और ये v of x कोई भी फंक्शन हो सकती है, like exponential, like our polynomial function, monomial function, like sine cosine function, it can be any function. तो जब भी हमारी एक फंक्शन अगर हमारी एक्सपोनेंशियल है, तो उस केस में हम d को अपडेट करेंगे, and there will be no role of now this e to the power of ax. We will update, now we will try to find this operator value over this operator, that is 1 by f of d plus a. So this is our rule number 4. Okay, so now we are going to discuss one example, and I'll show you how you can find the solution using the rule number 4. So हमारी क्वेश्चन क्या है, the question is given is, it's a d square minus 4d plus 4 y is equal to x into e to the power of 2x. हम देख सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है which is a non-zero, that represent that this equation is our non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient.
और हम देख सकते हैं जो हमारी फंक्शन है वो फंक्शन है वन टर्म, दैट इज वन, एक फंक्शन जो हमारी एक्सपोनेंशियल है और दूसरी टर्म हमारी एक मोनोमियल फंक्शन है जो कि x है. So in that case we can apply our rule number 4 and we can find the particular integral. So हमें यहाँ पर solution निकालना है, so that we have to calculate the complementary function and we have to also calculate the particular integral. So पहले हम complementary function निकालते हैं. So complementary function के लिए we have to write the auxiliary equation. So what will be the auxiliary equation for the homogeneous differential equation? अगर हम consider करें d square minus 4d plus 4 y is equal to 0, that will be our corresponding homogeneous differential equation. और वहां से जो solution मिलेगा that will be our complementary solution or the complementary function. तो उसके लिए हमें auxiliary equation चाहिए. So auxiliary equation will be it's a m square minus 4m plus 4. We assume that e to the power of mx with a trial solution, and after replacing we will get this one, that is our auxiliary equation, and after solving we will get our root, that root is called the auxiliary root. So यहाँ पर लिख सकते हैं m minus 2 whole square equal to 0 and the value of m will be it's 2 and 2. यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारी रूट है, auxiliary root है, वो रियल एंड रिपीटेड रूट है. So in that case our complementary function will be yc equal to c1 plus c2x, it's a e to the power of 2x. Now we have to find our particular integral. So yp equal to, that is our particular integral. What is the operator here? यहाँ पर जो हमारी operator है, that operator is our, it's a d minus 4d plus 4. यानी f of d जो है वो हमारी है d square minus 4d plus 4. So we can also write d minus 2 whole square. हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और हमारी जो राइट हैंड साइड फंक्शन है x इंटू e टू दी पावर ऑफ 2x. यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारी फंक्शन है, एक फंक्शन हमारी एक्सपोनेंशियल है और एक फंक्शन हमारी मोनोमियल फंक्शन है. यानी ये जो फंक्शन है वो हमारी रूल नंबर 4 पर फिट हो रही है, क्योंकि एक फंक्शन हमारा फिक्स्ड है जो कि एक्सपोनेंशियल है. सो फॉर दैट वी हैव टू रिमूव दिस एक्सपोनेंशियल टर्म्स. उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिप्लेस हेयर d विथ d प्लस 2, क्योंकि हमारी a की वैल्यू क्या है, अगर हम कंपेयर करें e टू द पावर ऑफ x से, so here a is our 2, so we have to replace d with d plus 2. so हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e to the power of 2x, ये बाहर हो जाएगा 1 by, now when we replace d with d plus 2, so we are getting d square. हमें d square मिला और यहाँ पर हुई हमारे x, only x. now 1 by d square का मीनिंग क्या हो रहा है, 1 by d square it is our इंटीग्रेशन विथ 2 टाइम्स. यानी अगर हम d का कहने का मतलब क्या हो रहा है, d इज आवर डेरिवेटिव, दैट इज d by dx, एंड 1 by d का मीनिंग क्या हो रहा है, 1 by d इज आवर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx. यानी 1 by d स्क्वायर का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस रिप्रेजेंट दैट इट्स अ 2 टाइम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर हम पॉलिनोमियल और मोनोमियल वाला भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, बट सिंस देयर इज ए सिंगल टर्म ओनली, सो नो नीड टू अप्लाई दैट वन. हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके इस फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट, e टू द पावर ऑफ 2x, और इसका अगर हम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे, सो वी विल गेट, फर्स्ट टाइम वी विल गेट x स्क्वायर बाय 2 एंड द सेकेंड टाइम वी विल गेट x क्यूब बाय 6. so x cube by 6. So this is our pi, that is our particular integral. Now once we combine this CF, that is the complementary function, and the particular integral, we will get our general solution. So इस केस में हमारी general solution क्या होगी, that is GS equal to, that is general solution will be y equal to yc plus yp, that is complementary function plus particular integral. So यहाँ पर हमारा CF क्या है, complementary function क्या है, c1 plus c2x e to the power of 2x. So c1 plus c2x e to the power of 2x प्लस हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है यहाँ पर, e to the power of 2x into x cube by 6. So x cube by 6 e to the power of 2x. So this is our general solution. This is our general solution of the given differential equation. So इसको हमने यहाँ पर जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लगाया है, निकाला है, वो हमने रूल 4 से निकाला है.
और याद रहे जब भी कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक टर्म एक्सपोनेंशियल है और दूसरी टर्म कोई भी या दूसरी फंक्शन कोई भी हो सकती है, उस केस में हम डी को अपडेट करके और जो रिमेनिंग फंक्शन है उस पर हम अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। So this is our one example of our rule number 4. Rule number 4, again I am repeating, when some function is given as a product of exponential with another function or any function. तो यहाँ पर any function को मैंने क्या माना है, that any function is our v of x. Okay, so now we are going to discuss another rule, that is the rule number 5 to finding the particular integral. तो नाउ इन दिस रूल नंबर 5 हम देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना वो इस फॉर्म में हो सकता है x इंटू वी ऑफ एक्स। x क्या है, हमारी एक मोनोमियल टर्म है, एक सिंगल टर्म है, या फिर ऐसे भी हो सकती है x टू द पावर ऑफ n इंटू वी ऑफ एक्स, x इंटू वी एक्स और x टू द पावर ऑफ n इंटू वी एक्स। यहाँ पर n क्या है, वेर n इज आवर पॉजिटिव इंटीजर, लाइक x इंटू वी एक्स, एक्स स्क्वायर वी एक्स, एक्स क्यूब वी एक्स एंड सो ऑन। So इस तरह का अगर फंक्शन है, that is one term is our monomial and one function will be any function, then in that case that particular integral will be it's a yp equal to 1 by f of d। मैं यहाँ पर जनरल केस ले रहा हूँ, that is x to the power of n। अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारी बन जाएगी x into vx। So in that case to finding the particular integral, the direct method or the shortcut method to find the particular integral will be it's x minus f dash d। f dash d का मीनिंग क्या है, fd क्या है, fd is our linear differential operator। So f dash d will be our the derivative of that operator with respect to d। So f dash d by fd to the power n, that is whole term to the power of n into 1 by f of d v of x। और ये v of x क्या है, vx is our any function जो कि हम यहाँ पर माने हैं मोनोमियल के साथ कोई दूसरा फंक्शन हो। सो दैट वी अज्यूम दैट v of x। सो इफ यू टेक n इक्वल टू 1, सपोज हम ले रहे हैं फॉर n इक्वल टू 1, सो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर फंक्शन, हमारी फंक्शन क्या होगी, हमारी जो फंक्शन दिखेगी ना वो होगी x इंटू वी ऑफ एक्स। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, in that case we can write the formula will be x minus it's f dash t divided by fd to the power, here we have taken n equal to 1, so that power will be 1, so which is simply 1 into 1 by f of d। और किस पर ऑपरेट करेंगे, here we operate our function v of x। यहाँ पर v of x मैंने क्या माना, कोई एक फंक्शन है जो कि अदर देन मोनोमियल है। सो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, पहले हम v को ऑपरेट करेंगे ओवर आवर ऑपरेटर 1 by f of d and whatever we get again we will operate that function with this term, that is x minus f dash t by f of d। और जब मैंने n equal to 1 लिया तो ये हमारा फॉर्मूला ये बना। सो ये इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, जनरल फॉर्मूला। accordingly if you take n equal to 2 we can write that one, if you take n equal to 3 accordingly we can write that one। So this is our rule number 5। This is a product of a monomial with other function like v of x, it can be some exponential term, it can be some sine cosine term or any function। Okay, so now we are going to discuss another rule, that is the rule number 6। और ये जो हमारी जो rule number 6 है ना वो rule number 5 का ही एक particular case है। So when some function f of x is our x to the power of n sin of ax या फिर sin of ax plus b या फिर x टू द पावर ऑफ n cos ऑफ ax और cos ऑफ ax प्लस b के फॉर्म में होगी, इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस तरह भी निकाल सकते हैं 1 by f of d x टू द पावर ऑफ n e टू द पावर ऑफ i a x, वेयर i इज आवर आयोटा, दैट इज आवर इमेजिनरी नंबर और द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर e टू द पावर ऑफ ix का मीनिंग क्या हो रहा है, e टू द पावर ऑफ ix इज आवर एज पर आवर ऑयलर्स फार्मूला के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसे, cos ax प्लस आई साइन ए एक्स। सो अगर जब भी हमें x टू द पावर ऑफ n और साइन ए एक्स और x टू द पावर ऑफ n cos ए एक्स है, हम इसे रूल नंबर 5 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक टर्म हमारी मोनोमियल टर्म है और दूसरी फंक्शन हमारी कुछ भी हो सकती है। तो इसे हम रूल नंबर 5 से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम रूल 6 जो कि एक पर्टिकुलर केस है रूल नंबर 5 का, इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम कर क्या रहे हैं कि a टू द पावर ऑफ आई एक्स का हम निकाल रहे हैं, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ cos ax प्लस आई साइन एक्स, यानी हम दोनों का कॉम्बिनेशन का निकाल रहे हैं। एंड इफ यू रिप्लेस दिस वैल्यू, अगर हम रिप्लेस करें इस वैल्यू को e टू द पावर ऑफ आई एक्स इक्वल टू cos ax प्लस आई साइन एक्स, यानी हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस cos ax इंटू एक्स एन प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन आई साइन ax, यानी हम दोनों टर्म का निकाल रहे हैं। तो अगर हमारी फंक्शन इस तरह दी हुई x to the power of n sin ax, in that case we have to calculate the value of x to the power of n e to the power of ix, और जो यहाँ से रियल वाली पार्ट आएगी वो हमारी cos वाली बनेगी। So when you try to find the particular integral of x to the power of n cos ax, in that case the real part of x to the power of n e to the power of ix will be the particular integral of this function x to the power of n cos ax। कहने का मतलब जब भी हमारी x टू दी पावर ऑफ n cos ax है, हम इस फंक्शन का निकालेंगे दैट इज x टू दी पावर ऑफ n e टू दी पावर ऑफ ix। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम e टू दी पावर ऑफ ix में क्यों लिखेंगे। सो अगर हम e टू दी पावर ऑफ ix में अगर हम कर पा रहे हैं, ताकि हम रूल नंबर 4 के हिसाब से हम एक्सपोनेंशियल विथ अनदर फंक्शन वाले फॉर्म के हिसाब से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, आफ्टर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस x टू दी पावर ऑफ n e टू दी पावर ऑफ ix, हमें क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म मिलेगा। वहां से हमें कुछ रियल पार्ट मिलेगा और कुछ हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगी। सो इफ यू कंपेयर एंड इफ यू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द रियल पार्ट, जो रियल पार्ट होगी ना वो xn इंटू कॉस एक्स वाला होगा पार्ट। सो इन दैट केस रियल पार्ट ऑफ दिस xn e टू द पावर ऑफ ix, यू कैन सी दैट xn e टू द पावर ऑफ ix जो हम लिख सकते हैं cos ax प्लस आई साइन एक्स। अगर हम xn से मल्टीप्लाई करें xn e टू द पावर ऑफ ix, विच विल बी आवर xn cos ax प्लस i टाइम्स ऑफ xn sin ix। और कहने का मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इसका निकाल रहे हैं, यानी हम दोनों का निकाल रहे हैं xn cos x प्लस i sin x, और इसमें हमें जो मिलेगा एक रियल पार्ट मिलेगा और एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो जो रियल पार्ट वाला टर्म होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा किसका, cos x का, और जो इमेजिनरी पार्ट वाली होगी वो होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस sin x वाला टर्म का। तो जब भी हमारी xn sin ax और xn cos ax है, वी कैन यूज द रूल नंबर 5 जो कि जनरल मेथड है हमारा, और जनरल फॉर्मूला है लाइक दिस वन, x माइनस एफ डैश टी बाई एफ डी टू द पावर ऑफ n इंटू 1 बाई एफ ऑफ डी वी ऑफ x। या फिर हम इस के हेल्प से लाइक xn e टू द पावर ऑफ ix के हेल्प से निकाल के हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ cos x इज द रियल पार्ट ऑफ दैट वन and particular integral of xn sin x that will be the imaginary part of xn e to the power of ix। तो ये हमारा रूल 6 जो कि रूल 5 का एक पर्टिकुलर केस है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एग्जांपल। सो सी द प्रॉब्लम इज d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू x cos x। सो यहाँ पर हमारी जो फंक्शन है ना वो x cos x, यानी इसमें एक फंक्शन हमारी मोनोमियल फंक्शन है और दूसरी फंक्शन हमारी cos की फंक्शन है, कोसाइन की फंक्शन है। सो हियर वी कैन अप्लाई द रूल नंबर 5, वी कैन आल्सो अप्लाई द रूल नंबर 6। सो मैं यहाँ पर दोनों मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, एंड दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, corresponding to our homogeneous equation that will be our m square plus 4 equal to 0, and in that case we will get our auxiliary root that will be our m equal to plus minus 2y, एंड यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या, ऑपरेटर इज आवर एफ ऑफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4। सो वाई सी दैट इज द कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 cos 2x प्लस c2 sin x। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं एज पर आवर रूल नंबर 5। सो एज पर रूल नंबर 5 हाउ वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने देखा x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी टू द पावर ऑफ n। So this is our particular integral that is 1 by d square plus 4 x cos x। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की जो पावर है ना वो 1 है, यानी जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस एफ डैश टी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू इसकी पावर होगी n, बट यहाँ पर x का पावर क्या है 1 है, सो दैट्स वाई दिस पावर विल बी 1 एंड नाउ 1 बाई एफ ऑफ डी cos x, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है वो cos की फंक्शन है। तो पहले हमें क्या करना होगा, जो 1 बाई एफ ऑफ डी जो ऑपरेटर है पहले इस cos x को हमें ऑपरेट करना होगा। सो इफ वी
इफ यू ऑपरेट दिस 1 बाई एफ ऑफ डी कॉस एक्स, हमें यहाँ पर कोसाइन वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, दैट इज आवर रूल नंबर 2। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर विथ माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमारी ए क्या है, अगर हम कॉस एक्स को कंपेयर करें, सो ए इज आवर 1, सो दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर विथ माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी एफ ऑफ डी क्या है हमारी डी स्क्वायर प्लस 4। और हमने ये भी निकाल लिया एफ डेस डी क्या होगी, एफ डी हमने माना डी स्क्वायर प्लस 4। सो फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, एफ डेस डी इक्वल टू 2d, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू डी, सो विच इज आवर 2d एंड डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एफ ऑफ डी क्या है हमारा ऑपरेटर क्या है डी स्क्वायर प्लस 4। तो पहले हमें इस ऑपरेटर का वैल्यू निकालना होगा, एंड वॉट एवर वी गेट देन वी विल ऑपरेट दैट फंक्शन विथ आवर दिस ऑपरेटर। तो पहले हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ये हमारा सिंपल सा केस बन रहा है जो कि रूल नंबर 2 पर फिट होगा। यहाँ पर कोसाइन की टर्म है, यहाँ पर डी स्क्वायर को मैं -1 से रिप्लेस करूंगा, -1 होल स्क्वायर। सो इफ यू रिप्लेस -1 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी और -1 एंड +4। हमें क्या मिला 1/3, जो कि 0 नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर वाली पार्ट 0 नहीं हो रही है, यानी हमारा सिंपल सा केस है, उस केस में हमारी वैल्यू वही हो जाएगी, दैट इज 1/3 इंटू कॉस एक्स। हमने रिप्लेस किया डी स्क्वायर विथ -1 होल स्क्वायर, एंड हमारी जो ऑपरेटर बची है दैट इज x माइनस 2d बाई डी स्क्वायर प्लस 4। नाउ वी विल टेक दिस फंक्शन and we will operate with our x minus this one, that is 2d by d square plus 4. So हम यहाँ पर ले रहे हैं x into cos x by 3, that is x cos x divided by 3. Now this d, what is the meaning of d? d हमने बताया था कि d का मीनिंग हो रहा है क्या, डेरिवेटिव, और 1 by d का मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन। So the derivative of this cos x will be our minus sin x, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, so that's why this will become plus. So plus 2 by 3 because already is 2 here and 1 3 is here. So 2 by 3 1 by d square plus 4, हमारा जो ऑपरेटर का में जो बच रहा है ना वो टर्म है d square plus 4 with sin of x, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया cos x का, वो बचा हमारा sin x. Now we will operate this one. Now we will try to find this value, क्योंकि हमारा ऑपरेटर बचा क्या 1 by d square plus 4 with sin x. तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, d square को रिप्लेस करेंगे with -1 whole square. So -1 whole square, that is -1 whole square plus 3, sorry plus 4, we will get 3. और यहाँ पर 0 फिर से नहीं हो रहा, यानी वैल्यू हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू वही हो जाएगी, यानी ये जो ऑपरेटर की वैल्यू होगी वही होगी, दैट इज 1/3 sin x with 2/3. So what we are getting, हमें फाइनल क्या मिला, x cos x divided by 3 plus 2/9 sin x. That means this is our yp. हमने रूल 5 का यूज किया और हमें मिला पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस वन, x cos x divided by 3 plus 2/9 sin x. If you combine this complementary function plus particular integral, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, in that case we are getting our general solution. So ये हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ। तो इस तरह हमने देखा रूल 5 जो कि फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला के हेल्प से हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। रिमेंबर दैट ये कब हमने लगाया, जब एक फंक्शन हमारी मोनोमियल हो सकती है या तो फिर पॉलिनोमियल हो सकती है विथ cos x. So in that case we will apply rule number 5. Now we are going to apply the same. Now we are going to apply the rule number 6 of the same problem. क्योंकि हम बोल रहे थे कि रूल नंबर 6 क्या है, एक पर्टिकुलर केस है रूल नंबर 5 का, जब भी हमारी एक फंक्शन मोनोमियल होगी और दूसरी फंक्शन हमारी cos या sin की हो सकती है, यानी हम जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो तो सेम ही होगी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम होगा। यहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। सो एज पर रूल नंबर 6 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, हमें निकालना होगा x इंटू यहाँ पर cos x है, यानी a की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी हम निकालेंगे जनरल ऑफ दैट इज द x इंटू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स। वेयर, क्यों हमने आई एक्स लिया, क्योंकि हमारी a की वैल्यू 1 है, ताकि ये जो e टू द पावर ऑफ आई एक्स है वो बताएगी cos x प्लस आई sin x, सो दैट x cos x प्लस आई टाइम्स ऑफ x sin x, यानी यहाँ पर हम दोनों वैल्यू निकाल रहे हैं cos x की और sin x की, और इसमें से हमें यहाँ पर चाहिए cos x वाली वैल्यू, यानी जो भी इस पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टर्म का निकलेगा, इस फंक्शन का निकलेगा x इंटू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स, उसमें से हम रियल पार्ट को लेंगे, दैट विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस x cos x.
तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पी आई ऑफ दिस वन, यानी इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म दी हुई है, सो ई टू द पावर ऑफ आई एक्स, यानी अगर हम नोटिस करें जो हमारी रूल नंबर 4 है, एक्सपोनेंशियल विथ एनी फंक्शन, उस केस में हम क्या करेंगे, डी के जगह पर डी प्लस ए रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर हमारी ई टू द पावर ऑफ आई एक्स है, यानी ए क्या है, हमारी आई है। सो वी रिप्लेस डी विथ डी प्लस आई। नाउ देयर विल बी नो रोल ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म को हम बाहर ले लेंगे एंड नाउ वी रिप्लेस दिस डी विथ डी प्लस आई। अब हमारा बचा हुआ फंक्शन क्या है, एक्स है। अब ये सिंगल सा फंक्शन बच रहा जो कि हमारा मोनोमियल फंक्शन है। सो नाउ वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन। सो डी प्लस आई स्क्वायर प्लस 4 वी कैन व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, so हमें मिल रहा है डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस आई स्क्वायर दैट इज -1 एंड प्लस 3 दैट इज सॉरी प्लस 4 दैट इज प्लस 3। सो हमें मिला ऑपरेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस 3 विथ आवर फंक्शन, रिमेनिंग फंक्शन इज आवर एक्स। अब जब भी ये देख सकते हैं कि हमारा एक सिंगल सा फंक्शन बच रहा है जो कि मोनोमियल के फॉर्म में है, जो कि रूल नंबर 3 फॉर फिट हो रहा है, जो कि हमने माना है कि पॉलिनोमियल और मोनोमियल वाला केस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को हमें 1 प्लस 5d और 1 माइनस 5d, यानी 1 प्लस डी के फॉर्म में और 1 माइनस डी के फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना होगा। सो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट एवर द टर्म, इस टर्म में जो भी लोएस्ट डिग्री ऑफ डी की होगी और द लोएस्ट पावर ऑफ डी की होगी उसे हमें लेना होगा। So here you can see that d square plus 2di plus 3, यानी यहाँ क्या है 3 into d to the power of 0, यानी lowest degree और the lowest power of d is our it's a d to the power of 0, यानी इसका टर्म क्या है हमारा 3 है, इस यानी इस 3 को हमें कॉमन लेना होगा ताकि हम इसे लिख पाए 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2di एंड डिवाइडेड बाई 3। याद रहे जब भी हम यहाँ पर लेंगे कॉमन, हम जब भी इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे हम लेंगे लोएस्ट डिग्री और लोएस्ट पावर ऑफ d, so that we can convert in the form of 1 plus phi of d or 1 plus function of d or 1 minus function of d. So now we are able to write in this form. अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे so we can write 1 plus d square plus 2di divided by 3 to the power of -1, और ये जो हमारे e to the power of ix है इसका कोई रोल नहीं होगा और ये 3 यहाँ पर चला आया, that is e to the power of ix divided by 3 into 1 plus d square plus 2di divided by 3 to the power of -1, and now the function is our x, right? Now we have to apply the binomial expansion. So यहाँ पर कौन सा expansion लगाएंगे, 1 plus x to the power of -1, that means 1 minus this function plus square of this function minus of cube of that function and so on. So we have to write the binomial expansion of 1 plus x to the power of -1 like that. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है ना वो फंक्शन क्या है, x है। सो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, लाइक फर्स्ट टर्म विल बी 1, द सेकेंड टर्म विल बी माइनस डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, प्लस इसका स्क्वायर। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे लाइक डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर, सो इन दैट केस वी विल गेट, हमें टर्म मिलेगा डी टू दी पावर ऑफ 4 का, डी टू दी पावर ऑफ क्यूब का और डी स्क्वायर का टर्म। अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे x के साथ वो सारी वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि ये x से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1 आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव 0 आएगी, अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रही है तो उसकी हायर ऑर्डर वैल्यू भी 0 आएगी, लाइक थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो इस केस में हमने एक्सपेंशन किया 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाई 3, एक मैंने और टर्म लिखा है डी स्क्वायर प्लस 2di डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सिंस दिस इज ए 1 प्लस 5 of d to the power of -1 expansion, so that's why we are getting minus plus and minus plus like that. अब इस ऑपरेटर को, जो भी हमारी ऑपरेटर बची, इस फंक्शन के साथ हमें ऑपरेट करना होगा। सो x with 1 that is x and d square plus 2di with this x. So अगर हम d square को x के साथ ऑपरेट करेंगे that is 2 time derivative which will be 0 and first time derivative that is 2di with d with x that is 1, so 2i and divided by 3, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिला। इस थर्ड वाले टर्म से अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि इसमें d4 की टर्म आएगी, d क्यूब की टर्म आएगी और d स्क्वायर की टर्म आएगी। हम देख सकते हैं अगर इसका हम
एक्सपेंशन करें तो हमारी d4, d³ और d² की टर्म बचेगी, जो कि इस फंक्शन पर ऑपरेट करने के बाद 0 हो जाएगी, एंड वी विल गेट अदर वैल्यू ऑल्सो 0. So that's why we are going up to that one, the second term. So now we are getting x minus 2i by 3 and e to the power of ix by 3. अब इसे हम क्या करना, ये हम देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आ रही है एक तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है. सो हमें क्या करना होगा, हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होगा ताकि हमारी जो वैल्यू आए वो रियल पार्ट के फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाइक इमेजिनरी के पार्ट में आए, और हमारी जो वैल्यू निकालनी है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x cos x का निकालना है. और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस x cos x विल बी, वी नो दैट इज द रियल पार्ट ऑफ हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ दिस 1/d² प्लस 4 विथ x इंटू e टू द पावर ऑफ ix. यानी इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी 1/d² प्लस 4 x cos x, इसका मीनिंग क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू. यानी यहाँ से हमें केवल रियल पार्ट निकालना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सिंप्लीफिकेशन. सो e टू द पावर ऑफ ix एज पर आवर Euler's फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट cos x plus I sin x divided by 3 and x minus 2 by 3i. नाउ वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन. तो हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि रियल पार्ट को एक साथ रखे हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे. सो cos x divided by 3 with x, we are getting x cos x by 3, and the second term with this second term, that is I square, that is I square minus 1, and already minus sign is there, that is plus. So 2/9, that is 2/3 into 1/3, that is 2/9 into sin x. ये हमारा मिला रियल टर्म, और कुछ मिलेगा हमारा इमेजिनरी टर्म. सो इमेजिनरी टर्म क्या आएगी हमारी, this sin x by 3 with x, so we can write x sin x डिवाइडेड बाई 3, और हमारी इमेजिनरी टर्म क्या बचेगी, -2/3i विथ दिस cos x by 3. सो व्हाट वी कैन राइट, -2/9 या -2/9 cos x, -2/9 cos x. तो ये हमारा मिला रियल पार्ट और ये हमारा मिला इमेजिनरी पार्ट. सो इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है cos x वाला. सो cos x वाला जो होगा रियल पार्ट, यानी दैट मीन्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारी बनेगी वो होगी x cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/9 sin x. ये किसकी हो रही है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो रही है. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं yp जो है हमारी 1/d² प्लस 4 x cos x, दैट वैल्यू इज आवर, हमें क्या मिला, रियल पार्ट ऑफ दैट वन. सो x cos x, हम यहाँ इमेजिनरी पार्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसकी होगी, वो हो सकती थी वैल्यू किसकी, x sin x की वैल्यू हो सकती थी. ये जो होगी हमारी इमेजिनरी पार्ट की वो होगी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x sin x की. लेकिन हमें क्या निकालना है, x cos x का निकालना है. सो x cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/9 एंड sin x, ये हमारा निकला p, yp, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन विल बी y इक्वल टू yc प्लस yp. सो yc हमने क्या निकाला था, C1 cos 2x. हम देख सकते हैं जो हमने रूल नंबर 5 से भी निकाला था, सॉल्यूशन हमारा क्या था, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सेम ही आ रहा है, लाइक x cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/9 sin x. सो किसी भी मेथड से लगाए, आइदर रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6, वी विल गेट द सेम आंसर. So C2 sin 2x, this is our CF plus particular integral क्या है, x cos x divided by 3 plus 2/9 sin x. So this is our general solution. So हम देख सकते हैं कि जब भी हमारी फंक्शन, एक फंक्शन पॉलिनोमियल और मोनोमियल हो और दूसरी फंक्शन हमारी साइन कोसाइन हो, उस टर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में लिख सकते हैं, और उसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. जो रियल वाली पार्ट होगी वो कॉस वाली होगी और जो इमेजिनरी वाली पार्ट होगी वो साइन वाली होगी. सो वी कैन फाइंड इन दैट वे, और वी कैन ऑल्सो अप्लाई द रूल नंबर 5 जो कि हमारा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हेल्प से भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं. सो इस तरह हमने देखा 6 मेथड और 6 रूल टू फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, लाइक व्हेन द फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियल टर्म, साइन कोसाइन, पॉलिनोमियल और मोनोमियल, product of exponential with any function, product of
monomial with any function, and one particular case of that one, that is the monomial with our साइन कोसाइन फंक्शन। अब क्वेश्चन हो रहा है कि क्या इस मेथड इन 6 रूल से हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, सारे फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे? सो द आंसर विल बी नो। हम इन 6 रूल से सारे फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल पाएंगे। सो समटाइम्स वी विल यूज द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन यू फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल वी विल यूज द जनरल मेथड। सो जनरल मेथड कब अप्लाई करेंगे? जनरल मेथड हम अप्लाई करेंगे when the function will be like tan x, cos x and cot x, और log x हो या एक्सपोनेंट ऑफ a टू द पावर ऑफ x का टर्म हो, उस केस में हम जनरल मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल मेथड, दैट थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। सो इफ f of x इज एनी फंक्शन ऑफ x देन 1 by d minus a, याद रहिए जो d minus a एक सिंगल लीनियर टर्म है। With our function f of x, that formula will be e to the power of ax, f of x into e to the power of minus x dx. So this is the formula of finding the value of 1 by d minus a. Here d minus a is a single linear operator. So अगर हमारी operator single है then it is fine. अगर हमारी operator single नहीं है then we have to try to write as a product of a linear term. And we can operate this one by one and we will get our particular integral. So this general method is preferable when f of x is not fitted with our short method of finding particular integral. यानी जो हमने डिस्कस किया है 6 मेथड और 6 रूल, अगर उसमें फिट नहीं हो पा रही है, when you try to use the d operator method, in that case we will use the general method to find the particular integral. Okay, so now I am going to take one example and I'll show you how we can find the particular integral with the help of general method. तो general method का बेसिक क्या है कि जो भी हमारी फंक्शन ऑपरेटर दी हुई रहेगी उसे हमें प्रोडक्ट में लिखना है एज ए लीनियर फॉर्म में। अगर पॉसिबल है तो उसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं विथ ए सिंगल लीनियर ऑपरेटर फंक्शन एंड देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। Okay, see this one example, d square plus 9y is equal to sec 3x। हम देख सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है वो sec है, जो कि किसी भी जो हमने पढ़ा है 6 रूल उसमें से किसी में भी फिट नहीं हो रहा है। So in that case we will apply our general method for finding the particular integral. So what will be the auxiliary equation for this? That is m square plus 9 equal to 0, and in that case we are getting m equal to plus minus 3. That is our complex auxiliary root. So in that case what will be the complementary function? हमारी complementary function क्या बनेगी? c1 cos 3x plus c2 sin 3x. This is our complementary function. Now we want to find the particular integral, that is yp. हम देख सकते हैं हमारी फंक्शन क्या है, हमारी sec 3x एंड हमारा ऑपरेटर क्या है, d square plus 9. So 1 by d square plus 9 sec 3x. Since we have to apply the general method, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी ऑपरेटर है d square plus 9, इसे हमें क्या करना होगा, we have to convert in the form of as a product of a linear factor or linear term. So this d square plus 9 we can write as a d plus 3i and d minus 3i, where I is our complex number, that is I is equal to square root of minus 1. So d plus 3i and d minus 3i, that is our d square plus 9. तो हमने इसे लिख लिया दो लीनियर टर्म के फॉर्म में। अब इसे हम इसे 1 by 1 अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे जो भी हमारी टर्म बची है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन सेपरेट दिस टू टर्म एंड देन वी कैन अप्लाई 1 by 1. सो हेयर वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। हम देख सकते हैं d plus 3i एंड d minus 3i, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इन द न्यूमरेटर वी कैन राइट d plus 3i एंड माइनस ऑफ d minus 3i. सो हमें क्या मिलेगा अगर हम लिखें न्यूमरेटर में d plus 3i and minus of d minus 3i. So we are getting d and d will cancel, 3i and plus 3i, so we are getting 6i. So हमने इसे क्या किया 1 by 6i and here we are getting d plus 3i and d minus 3i. If you divide individually, what we are getting 1 by d minus 3i and minus of 1 by d plus 3i. After dividing this expression, that is d plus 3i minus d of minus 3i with the product term, that is the denominator term d plus 3i d minus 3i.
या फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसे अलग कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगा के यहाँ पर हम सॉल्यूशन और इसकी वैल्यू निकाल पाए। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट सेपरेटली, हम क्या लिख सकते हैं, 1/6i 1/d माइनस 3i sec 3x एंड माइनस ऑफ 1/6i d प्लस 3i sec 3x। सो हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम ही है, ओनली द डिफरेंस इज दैट हियर d माइनस 3i एंड d प्लस 3i। तो अगर हम इनमें से किसी एक का वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो दूसरे वाले वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, i के जगह पर माइनस आई रिप्लेस करेंगे सो दैट वी विल गेट द सेकेंड वैल्यू। सो दिस इज वन एडवांटेज आफ्टर राइटिंग इन आवर पार्शियल फ्रैक्शन। सेपरेट टर्म में लिखने का एक फायदा हुआ कि हमें अगर हम इस ऑपरेटर का वैल्यू निकाल पाए लाइक दिस वन 1/d माइनस 3i ऑफ sec 3x, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, i की जगह पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी, i की जगह पर in the place of I we can replace minus I and we will get the value of 1/d plus 3i sec 3x. So now we are going to see the value of this one 1/d minus 3i sec 3x. So इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/d minus 3i sec 3x। हम इसे यूजिंग जनरल मेथड व्हाट वी कैन राइट, हमारा a क्या है, a हमारा 3i है, so it's e to the power of ax that is e to the power of 3ix इंटीग्रल ऑफ sec 3x इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 3ix। जो भी हमने लिखा है e टू द पावर ऑफ x, यह होगा e टू द पावर ऑफ माइनस x। हमने यहाँ पर जनरल मेथड लगाया है, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारा 1/d माइनस a इफ इट इज गिवन, सो e टू द पावर ऑफ x इंटीग्रल ओवर fx। fx क्या है हमारा, वहाँ पर fx हमारा sec 3x है, सो sec 3x इंटू ई टू द पावर ऑफ दैट माइनस x। और यहाँ पर a क्या है हमारी, a जो है हमारी वो 3i है, सो वी कैन राइट sec 3x e टू द पावर ऑफ माइनस 3ix dx and outer term will be e to the power of 3ix। so ये term तो as it is रहेगा। now we want to calculate the integral of this value, so e to the power of माइनस 3ix को हम क्या लिख सकते हैं, it's a cos 3x minus sin 3x divided by cos 3x, because this sec 3x will be our 1 by cos 3x। now we can divide individually and we can write 1 minus it's I tan 3x sin 3x divided by cos 3x that will be the tan 3x। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx that will be x and integration of I into tan 3x। so tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, we know that the integration of tan 3x is our, अगर हम माने tan mx का, so in that case how we can get the integration, that is sin mx by cos mx and we can assume that cos mx equal to some variable, so we will get minus sin mx equal to that variable d of that variable, so we can write the formula will be it's a minus log of cos mx divided by m plus c। so यहाँ पर हमारी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही, tan 3x की वैल्यू इट्स i by 3 log cos 3x divided by 3, यानी हमारा जो वैल्यू निकला 1/d minus 3i it's a sec 3x that value is our e to the power of 3ix x plus I by 3 log cos 3x। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर वैल्यू, हमें सेकेंड वाला वैल्यू भी निकालना होगा, जो की वैल्यू है 1/d plus 3i sec 3x। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंस हमने d माइनस 3 वाला वैल्यू निकाल लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से, उस केस में हमें क्या निकालना होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस 3i, क्योंकि a क्या हो जाएगी हमारी माइनस 3i, और फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। या तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है दैट इज 1/d minus 3i, so in the place of I whatever you are get the value we can replace minus I, we will get that value। so हम क्या लिख सकते हैं, e to the power of minus 3ix, क्योंकि i की जगह पर हमने माइनस आई रिप्लेस किया, और यहाँ पर भी हमने i की जगह पर माइनस आई रिप्लेस किया, सो वी आर गेटिंग e to the power of minus 3ix x minus I by 3 log cos 3x। so इस तरह हमें मिला अपना सेकेंड वाला वैल्यू, जो कि 1/d plus 3i sec 3x है। तो हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू d plus 3i sec 3x। so now we can write our p that is yp। so particular integral क्या होगा, yp equal to, हम क्या लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1/6i एंड दिस वैल्यू, सो 1/6i जो हमारी वाली वैल्यू थी दैट इज e to the power of 3ix and x plus I by 3 log cos 3x। so हम लिख रहे हैं ये वैल्यू, सो x प्लस सॉरी एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी होगी e to the power of 3ix
it's x plus I by 3 and it's a log of cos 3x, log of cos 3x plus the second value is our minus 1 by 6i and 1 by d plus 3i sec 3x. तो जो हमारा pi निकला है ना इसमें जस्ट हम क्या करेंगे, माइनस रिप्लेस करेंगे. So minus 1 by 6i e to the power of minus 3ix x minus I by 3 into log of mod of cos 3x. So this is our yp. Now if we want to do more simplification we can do. So हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले सकते हैं. So we can write 1 by 6 as a common. So 1 by 6i, x को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ. So e to the power of 3ix minus e to the power of minus 3ix divided by already there is we have taken 1 by 6i, so no need to write that one. So we can write e to the power of 3ix minus e to the power of minus 3ix. और जो हमारी log वाली टर्म बच रही है ना, वो क्या हो रही है, दोनों टर्म में i by 3 बच रहा है. So y by 3 log भी आएगा log cos 3x राइट. एंड बच क्या रहा टर्म हमारा, हम यहाँ पर 1 by 6i भी ले सकते हैं. So 1 by 6i into i, so I will cancel, so we are getting 1 by 6 and 1 by 3, so we are getting 1 by 18. मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 by 18 log cos 3x. और बचा हुआ टर्म क्या है हमारा, e to the power of 3ix minus e to the power of minus 3ix. So this is our yp. हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. And if we want to do more simplification, we can do more simplification. So we can use the sin x and cos x expansion also. So हमें पता है कि अगर हम sin x का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है, in terms of exponential, that is e to the power of ix minus e to the power of minus ix divided by 2ai, right? Or I think 2i. Yeah, we can check. Yeah, 2i. And what about the cos ax? The value of cos ax will be our e to the power of ix minus e to the power of, sorry, here it will be plus minus e to the power of minus ix divided by 2. There is a no iota sign here. Okay, so after that, after using this sign or cos in the form of exponential term, we can convert this exponential term in sin and cos. Okay, I have noticed one thing here. I think after taking this one log cos 3x, here we will get one is e to the power of 3ix and here minus minus plus, here it will be plus. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x by, हम यहाँ पर देख सकते हैं e to the power of 3ix minus e to the power of minus 3ix. So अगर हम ले लेंगे एक टर्म 2i, that is this 6i, we can write it's a 3 into 2i, so that will be x by 3 and 2i, so e to the power of 3ix minus e to the power of minus 3ix divided by 2i. So हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin 3x, हम इसे लिख सकते हैं sin 3x using this rule, using this formula. and plus 1 by 18 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस वाला है, यहाँ पर 2 हम यहाँ पर एक दे दें, that is 1 by 18 we can write it's a, this 18 we can write it's a 2 into 9, so 1 by 9 it's a log cos 3x and e to the power of 3ix plus e to the power of minus 3ix divided by 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 3. तो याद रहे इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से किसी भी एक्सपोनेंशियल को हम साइन कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन कोसाइन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. So this is our yp. So what will be the general solution? हम जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, it's a y equal to yc plus yp. So what is our yc, हमें यहाँ पर yc क्या मिला था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या थी हमारी, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन थी हमारी c1 cos 3x plus c2 sin 3x. So c1 cos 3x plus c2 sin 3x और हमारा p क्या है, yp क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, it's plus x by 3 sin 3x, so plus x by 3
इट्स अ साइन 3x एंड हमारा जो सेकंड टर्म है प्लस 1/9 इट्स अ लॉग cos 3x into cos 3x. So this is the general solution of the given differential equation. तो याद रहे जब भी हमारा ऐसा फॉर्म हो रहा राइट हैंड साइड में जो कि सेक की हो, टेन की हो, या फिर कॉसेस हो या कोट हो या फिर एक्सपोनेंट टर्म हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो कि हमारी रूल 6 पर जो हमने 6 रूल पढ़ा है उस पर फिट नहीं हो रहा है, अगर हम डी ऑपरेटर से सॉल्व करना चाह रहे हैं, so in that case we can apply the general method for finding the particular integral. Okay, so now we are going to see one problem जो कि गेट में आया हुआ है. So this question has was asked in GATE 2011 in production engineering paper. So question क्या है, the solution of the differential equation d2y by dx square plus 6 dy by dx plus 9y is equal to 9x plus c. So हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना, दिस प्रॉब्लम इज आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट. कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों होगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव की जो कोफिशिएंट है, ऑल्सो जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है. एंड दिस इज आवर नॉन होमोजेनियस फॉर्म बिकॉज देयर इज सम फंक्शन which is given in the right hand side, that is 9x plus c. So the solution will be where c1 and c2 are constant. So solution is given y is equal to c1x plus c2 e to the power of minus 3x. Option B is our y equal to c1 e to the power of 3x plus c2 e to the power of minus 3x. Option C is our y equal to c1x plus c2 e to the power of minus 3x plus x. And option D is our c1x plus c2 e to the power of 3x plus x. So हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है. सो जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ना, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ड्यू टू दिस राइट हैंड साइड फंक्शन. सो पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं. सो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना होगा, वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज ए कांस्टेंट कोफिशिएंट प्रॉब्लम. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y is equal to e to the power of mx with a trial solution. So what we can write, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0. एंड वी कैन राइट सी दिस m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी आवर m प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. And our auxiliary root will be it's a m equal to it's a minus 3 and minus 3. हमारी जो auxiliary root आ रही है ना वो रियल है एंड इक्वल भी है, दैट मीन द रिपीटेड इक्वल रूट आ रही है, रिपीटेड रियल रूट है जो कि इक्वल है, लाइक -3 एंड -3. सो व्हाट विल बी द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, दैट इज वाई सी इक्वल टू, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो वाई सी प्लस वाई पी होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होगा, वही इसका जनरल सोल्यूशन होगा. सो वाई सी विल बी इट्स अ c1 प्लस c2 x e to the power of minus 3x. Since the roots are real and repeated, so this is the complementary function. Now we can find the particular integral. So हम particular integral find करेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है ना 9x plus c which is a polynomial function, यानी बाइनोमियल के टर्म में दिया, लाइक 9x plus 6, यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो वी कैन अप्लाई आवर रूल नंबर 3. सो हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं. सो पी आई विल बी दैट इज आवर वाई पी इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, हमारा ऑपरेटर क्या है 1/d स्क्वायर. यू कैन सी आवर ऑपरेटर इज आवर d स्क्वायर, हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9. सो हमारा जो ऑपरेटर है ना यहाँ पर 1/इट्स d स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9. तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, वी कैन राइट इट्स d प्लस 3 होल स्क्वायर, d प्लस 3 होल स्क्वायर. और हमारा जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज आवर पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक 9x प्लस c, यानी पॉलिनोमियल और मोनोमियल वाला जो केस है हमारा रूल नंबर 3, उसके हेल्प से हम यहाँ पर पी निकालेंगे. So this is a some linear function kind of thing. So now for that what we have to do,
हमारा यहाँ पर बन रहा है डी प्लस थ्री होल स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें जो भी हमारा ऑपरेटर बन रहा है दैट इज एफ ऑफ डी इक्वल टू डी प्लस थ्री होल स्क्वायर, इसके हमें करना होगा वन प्लस सम फंक्शन ऑफ डी और वन माइनस सम फंक्शन ऑफ डी, उस फॉर्म में हमें लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे टर्म में डी प्लस थ्री जो है, इस पूरे टर्म में जो लोएस्ट पावर ऑफ डी है, जो कि डी की पावर जीरो होगी, जो कि जिसका टर्म है थ्री, उसको हम कॉमन लेंगे ताकि हम इसे वन प्लस फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में लिख पाए। तो अगर हम थ्री कॉमन लेंगे ना, सो दैट विल बी थ्री होल स्क्वायर, दैट विल बी 9 एंड इट विल बी वन प्लस डी बाई थ्री and that power will be 2 and here 9x plus 6, 9x plus 6, so 1 by 9। अब इसे हम न्यूमरेटर में ले जाके क्या लिख सकते हैं, 1 plus d by 3 to the power of minus 2 and here 9x plus 6। so now you can check that this is some form of a 1 plus suppose x to the power of minus 2। तो यहाँ पर जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आइदर वी कैन यूज द फॉर्मूला, और हमें पता है वन प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वन माइनस लाइक टू टाइम्स ऑफ दैट एक्स, हेयर एक्स वी एज्यूम दैट इट्स डी बाई थ्री प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डी बाई थ्री होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पर और भी टर्म लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी फंक्शन दी हुई ना, जो कि 9x प्लस 6 है, यानी अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे तो पहले डेरिवेटिव पर हमें 9 मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव के बाद 0 हो जाएगी, यानी थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव उसकी भी वैल्यू सारी 0 ही होंगी। सो नो नीड टू राइट द अदर टर्म एंड हियर 9x प्लस 6। नाउ वी विल ऑपरेट दिस फंक्शन 9x प्लस c विथ दिस ऑपरेटर। हमारा ऑपरेटर क्या है, 1 विथ 9x प्लस सी, तो हमें क्या मिलेगा 9x प्लस 6 माइनस इट्स ए 2d बाई 3। अगर हम d डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारी फर्स्ट टाइम में डेरिवेटिव आएगी 9 एंड दैट इज 2 बाई 3 इंटू 9, सो वी आर गेटिंग 2 बाई 3 इंटू 9 दैट इज 2 इंटू 3 दैट विल बी 6। और आगे वाली जो डेरिवेटिव होगी लाइक सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव दैट वैल्यू ऑल गोज टू 0, सो नो नीड टू राइट दैट वैल्यू। सो हमें क्या मिला 9x प्लस 6 माइनस 6, सो दिस प्लस 6 एंड माइनस 6 विल कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 9x बाई 1 बाई 9, सो वी आर गेटिंग x, यानी हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिला हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मिला वो हमें मिला x। सो हम जनरल सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और द सम ऑफ दिस complementary function plus the particular integral. So c1 plus c2 x e to the power of minus 3x plus x, that will be the general solution. So now we can check which option will be correct. So हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ना दैट इज y इक्वल टू c1 x प्लस c2 e to the power of minus 3, इसमें कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल है ही नहीं, यानी ये जो cf दिया हुआ है दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज आवर रिलेटेड टू नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये भी नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल का टर्म नहीं है। y इक्वल टू c1x प्लस c2 e to the power of minus 3x plus 6, we are getting this one, that means this will be correct। and here see here the it is look like same but here e to the power of 3x, यानी यहाँ पर ये जो टर्म है ये गलत हो रहा है, यानी this will be wrong, that means our correct option will be the option number C, so option C will be correct। so इस तरह हमने देखा क्योंकि कोई भी इक्वेशन हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में दी हुई रहेगी, तो उस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने शॉर्ट मेथड डिस्कस किया, जो कि हमने रूल 1 से रूल 6 तक पढ़ा है, देखा है। अगर हमारी फंक्शन उन 6 रूल पर फिट नहीं होगी, इन दैट केस वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल यूजिंग जनरल मेथड। और हम लोग ने जनरल मेथड में भी देखा कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने रूल 4 एंड रूल 5 पढ़ा, रूल 5 एंड 6 भी देखा हमने, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा। व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम एक्सपोनेंशियल टर्म विद सम फंक्शन भी। रूल 5 हमने देखा मोनोमियल फंक्शन
with some another function b, and rule 6 हमने देखा, some monomial function with either sin x और monomial function with cos ax। इन सारे रूल को हमने देखा आज कि इन अगर फंक्शन हमारी इस तरह दी हुई रहेगी तो हाउ वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने ये भी देखा द जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, like some function if it is given tan x, cot x, cos x, sec x, or exponential term exponent term or some logarithm term, then we can apply the general method for finding the particular integral. So this is the summary of this lecture. So now we are going to stop here, and in our next lecture we will start the Cauchy-Euler equation, which is a type of a variable differential equation with the differential equation will be in the linear differential equation form. So next lecture we will see the linear Cauchy-Euler differential equation. So till then, take care, and thank you for your time, and do more and more practice. So thank you very much, and bye to all.